me to ask, then you can ask. Okay, yes, yes. Okay. So, Geeta, like Cherry, according to you, what is Cherry? A Cherry modern day classic. Well, it is a modern day classic because there's a lot of references to the old Indian cinema. So you get the silent references of silent movies as well as the 1950s and 20s. So that's a very interesting part of the film. Also the costumes, as you'll see, it's all classical, and I think you'll notice once you see the film that the way we act and the way the dialogues have been delivered is very much in tune with the classical way of filmmaking from the old Hindi movies. So. How was your experience while working in Hindi film? Yeah. You have also played a role in Mari. Yes, that's right. How was your experience while working in Hindi film? Oh, I love it. I love it. So I've been growing up with watching Hindi films. So Hindi मैंने ऐसे ही सीखी है, like Hindi picture देखने के लिए. So I was born and raised in Denmark and watching Bollywood films because of my dad, and we used to watch old Hindi films. So I used to watch all these black and white films. So that's what doing Cherry was very exciting for me because I could recognize quite a lot of these characters and ye jo nibahe hote hain, like you notice these kind of things. And so acting in Hindi films has always been very interesting, I guess. Also the fact my aunt, she's in the industry, and I used to watch her at Ramavej, you might know. So seeing that and using my Hindi, I think that's it's a lot of fun. It's always nice to act. Has that been kind of difficult or challenging for you, or it's just like you go with the flow? I suppose I kind of go with the flow. I mean, मैंने यहाँ पे भी study किया हुआ acting, तो मैंने किशोर अमिर कपूर की acting classes भी की हुई है पहले, and मैंने theatre भी की हुई है जब से मैं छोटी थी in Denmark, and so I think that part it comes more naturally. But of course कि जब दूसरे भाषा में है, then you also want to adopt those kind of things and those kind of emotions as well. So sometimes you just have to understand कि अच्छा character में क्या है, and like what is it exactly they're speaking, and how does that being perceived in that culture, because you may say something in English in one place and that will be understood in a different way in a different culture. So like, I mean, you know how it is. It's like if you go like business wise and you go to Japan and stuff and you have to like really the bowing. So these kind of mannerisms can be understood differently. So I think it's important to also understand the cultural. As you have told that you love watching black and Yes. and white movies, Yeah. and in this Cherry, Yeah. you also seen some scenes in black and white. That's right. So how was the scene and all? That you'll have to watch. Oh. So it's, I think it's a very interesting film because I think it's interesting that in a day like today, you're able to do a lot more experimentation with films and it's more acceptable. And it's nice that, you get a lot of beautiful films coming out these days, but none of them really, there's very little who actually gives a lot of references to the old classical films where you don't have to do a lot of, how do you say, Efforts. well, that could be, but I wasn't referring to that actually. I think it's nice going back to the basics and keeping the innocence, but still being able to tell a story without having to put too much of confetti around it. And I think that's you can go back and with references, a bit like the artist, I suppose, that you have the references to old films and you can see the beauty in that. And actually, I think that's nice. So what kind of role you are playing in this film? So I played Devika, which is the love interest of Arya Babbar. And again, as it's Chehre, I think you should watch the film and then you can tell me what is my role about. So there are songs, any dedicated songs in you? I'm in a song, yes, where we are dancing and yes. So it has to be a musical, a nice Bollywood musical. उसके बिना तो Bollywood musical ही नहीं होगा. Any dialogue in this film which you never and ever gonna forget? There are a few. Okay. There are a few, because I must admit there was one word that I was getting, but I'm not going to say that right now because I'm not going to make it fool. But there was one word where I was kind of
getting stuck. एक अटक जाता है ना, like एक लफ्ज़ के ऊपर कभी-कभी. So I think at that time I'd just been traveling quite a bit, and I was like getting back to the Hindi because I hadn't used it for a while. And so yeah, there was one word, but I don't need to say that one right now. And a single line So- from your dialogue, it really loved you. Gosh, it's a while ago. Okay. So I think watch the film and then maybe Okay. I'll probably yes. Okay, thank you so much. Thank you. I hope you like it. Thanks. So, आपसे जानना चाहूँगी चेहरे और मॉडलिंग क्या है आपकी मॉडर्न डे क्लासिक कहानी उस किस्म की है. ब्लैक एंड वाइट का हीरो है जो प्रोड्यूसर बन जाता है और एक मर्डर मिस्ट्री है. तो वो सारी बातें हैं जो ओल्ड क्लासिक्स में होते थे. जिस हिसाब से उसे शूट किया है, जो लुक है हर किरदार का, देख सकते हैं आप. देखें. सो बेसिकली द लुक ऑफ द फिल्म, जो जिस हिसाब से पिक्चर दिख रहा है, जिस हिसाब से इसकी कहानी है, ओल्ड क्लासिक्स ही लगते हैं. पुराने फिल्मों का जो स्टाइल था वही स्टाइल है. जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल की नई दौर आ रहे हैं, नया मॉडर्नाइज हो रहा है, कई सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं. उसमें ये क्लासिक जज्बा नहीं बदलता, इमोशंस नहीं बदलते, आंसू का रंग नहीं बदलता, भूख नहीं बदलता, गरीबी नहीं बदलती, अमीरी नहीं बदलता. पिक्चर में वो सारी बातें तो होती है, अमीर गरीब, चोर पुलिस, माँ बाप के, गरीब माँ बाप, अमीर माँ बाप, बच्चों का प्यार, वो सारी चीज़ें कहाँ बदली है. तो कितनी भी चीज़ें बदल जाए मगर जज्बा नहीं बदलेगा और कहानी नहीं बदलेगी. सो वो सस्पेंस पिक्चर बहुत दिन के बाद अच्छी आ रही है. तो एक सस्पेंस पिक्चर के हिसाब से ये ओल्ड क्लासिक सस्पेंस है, मज़ा आएगा. इस पिक्चर में किस तरह का किरदार निभाया है? मैं एक एक्टर, ब्लैक एंड वाइट का एक्टर हूँ जो प्रोड्यूसर बन जाता है, जिसे अपनी हीरोइन से बहुत प्यार है. और क्या होता है वो तो आपको देखना चाहिए. मैं कैसे बता दूँ सब कुछ. दादा आपने 4 डेकेड्स हो गए आपको बॉलीवुड में, 175 मूवीज की है, 9 लैंग्वेजेस में. तो कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग रहा है ये आपके लिए? मेरी जान कुछ इतना मुश्किल नहीं रहा जितना लगता है. जब मैं सड़क पर देखता हूँ हाथ गाड़ी खींचते हुए औरतें और गरीब बच्चों को, मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट लगता है. मेरी ज़िंदगी तो एक फूल की तरह निकल गई. कुछ कांटों को खेला और कुछ फूलों के साथ खेला, उनकी खुशबू ली, इनसे टोच खाकर खून भी निकाला. तो मतलब ज़िंदगी चलता रहा और खूबसूरत चलता रहा और आज तक चल रहा और आगे भी चलेगा, कबर तक चलेगा. जो हम जानते हैं कि मनीषा खुराना ने काफ़ी टाइम बाद कमबैक किया है, तो किस तरह की केमिस्ट्री रही उनके साथ? बहुत खूबसूरत. वो उसी किस्म की एक्ट्रेस हैं जो कि मीना जी के लेवल की लगती हैं मुझे. उनके इमोशंस होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बहुत रियल होते हैं. उनका व्यवहार जूनियर आर्टिस्ट से लेकर प्रोड्यूसर तक एक ही रहता है. इनकी बात कुछ और है. एक क्लासिक ब्यूटी है और इस फिल्म में, क्लासिक फिल्म के अंदर क्लासिक ब्यूटी का आना बहुत बड़ी बात है. ऐसे नया दौर आया है, नई तेरा फ्लैश मारना बंद करना बे. जैसे हम जानते हैं कि इतना मारेगा वही का वही थोबड़े को. एक ही थोबड़ा लेके छिड़क गया तो कोई मिला नहीं, शुरू से लगता है. बिंदास. हाँ, नया दौर आया है आजकल के ज़माने में. नए एक्टर्स गाना अपनी पिक्चर में खुद गाना पसंद करते हैं. तो आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि गाना गाने? मैंने नहीं सोचा है, मगर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं गा सकता हूँ, अगर किसी पिक्चर में मौका दिए तो मैं गाऊंगा. किस तरह का गाना गाना आप पसंद करेंगे? पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है, पग चले आए ना, या तो मुझसे छल के जा, या तो मेरा गोरा अंग ले ले, मुझे शाम रंग दे दे. ये पिक्चर से जुड़ा हुआ है? पिक्चर से नहीं जुड़ा हुआ है ये गाने, पिक्चर से नहीं जुड़ा हुआ. पिक्चर में कुछ और ही गाना है. अच्छा, तो कितने गाने इसमें आप पे फरमाए गए हैं? वो डायरेक्टर साहब बताएंगे, रोहित साहब, एग्जैक्टली कितने हैं कितने नहीं. मुझे तो लगता है कि 1 या 2 है ऐसे. जी. हर पिक्चर में एक विलेन होता है, एक हीरो होता है. तो किस तरह का एक्सपीरियंस है हर पिक्चर? इस पिक्चर के अंदर सब विलन सब हीरो है.
कोई हीरो मतलब कोई विलन ऐसा नहीं, सारे के सारे हीरो ऐसे लगते, सारे एक्टर विलन ही है और सारे एक्टर हीरो है। और कहानी इसका हीरो है, कहानी जिस हिसाब से एक मर्डर मिस्ट्री को इन्होंने पिरोया है वो इसका हीरो है। मर्डर मिस्ट्री, पुराने ज़माने की बातें, पुराना स्टाइल बहुत दिनों के बाद आ रहा है। बस सबको प्यार मोहब्बत प्रणाम, सबको सलाम, खुश रहो बस, बाकी बिंदास रहो। ऑल द बेस्ट। Do I have to look here at you? No, camera. There? Okay. So, चेहरे कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मेमोरेबल रही आपके लिए? It's an interesting film. जब मैंने लिखी थी इसको, मुझे याद है जब मैं लिखता था ये कि फिल्म स्टार्स जो थे, नादिरा जी जो मुझे अपना बेटा मानती थी, एक टाइम उनके बर्थडे पे जाता था तो पुरानी एक्ट्रेसेस मिलती थी मुझे वहाँ पे, बहुत मशहूर अदाकारा, निरूपा रॉय जी, शकीला जी, बेगम पारा, ये सब बैठ के गुफ्तगू करते थे। तो मैं उस वक्त उनसे मिलता था तो इट वॉज वेरी नाइस बिकॉज आई लर्न सो मच के किस तरह से उनकी बातचीत होती थी, किस तरह से उनका लहजा था बात करने का, किस तरह से उनका रहन सहन था उस वक्त, और उस वक्त के हमारे ज़माने में क्या फिल्में बनती थी। तो दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट द स्टोरी एंड आई वॉज एबल टू मेक चेहरे दिन। आई सेड चेहरे से आई मेड एन इंट्रीगिंग ड्रामा, a thriller. So it's very beautifully lit as a film, not only as camera work or music or costumes or actors. It is lit beautifully because it visualizes the impact of the period. It gives you an intense look into the emotions of people and their failings, the deception, and trying to be what you want to be. That's what Cherry is all about. As you have told that you really love watching old movies and now Yes. the generation has been changed, decades has been changed, many of changes have Right, come. right. So what makes you come back and like this? To see, I tell you what, I am a person who's grounded in reality of today. I make cinema, I want to make cinema, I used to do commercials, I did ads, and I was in Americas, I was working there, studied and all the other. And I've been working here quite a bit, and I started doing cinema. I'll take up a subject which is extremely important to me at that particular juncture. जो उस कहानी को मुझे मोड़ देना है, जो उसको रूप देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई कॉमेडी करनी, जैसे अगली मैं फिर कॉमेडी करना चाहता हूँ और एक इमोशनल फिल्म, दोनों मेरी स्क्रिप्ट तैयार हैं शुरू करने के लिए, तो क्या होता है कि मैं ये सबसे पहले मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा तो किसी और को मज़ा नहीं आएगा। तो मेन थिंग इज इफ समथिंग लाइक मैं बहुत पढ़ता हूँ, आई रीड अ लॉट, सो इफ यू डोंट एंजॉय समथिंग योरसेल्फ तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी और को मज़ा आएगा। इसलिए उसको मज़ा देने के लिए आपको खुद मज़ा करना चाहिए, खुद समझना चाहिए, कुछ एहसास करना चाहिए और कुछ सच्चाई को मज़े से मोड़ तोड़ लगा के एक अच्छी कहानी दिलचस्प बनानी चाहिए। Talk about casting. There are lots of actors. Lots of actors. Right. So how do you decide casting and? See, acting, an actor, as Gulshan Grover ji once said, कि this acting for the role of Manisha ji, which she's playing the role of Tarana, कि पहले सारिका जी भी थी, सब थे, बात नहीं बन सकी, तो एंड में जब मेरे को एक आई वांटेड एन एक्टर जो पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में ऐसे ब्यूटीफुल और समझ हो उनको और उसमें ग्रेस हो और वो दीवा का एटीट्यूड हो, तो मनीषा जी वाज द राइट पर्सन फॉर दैट रोल। एंड व्हेन आई स्पोक विद हर एंड मेट हर, एंड जो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने 20 मिनट में कहा मैं ये फिल्म करूंगी, उनको कहानी बहुत पसंद आई। तो एवरी एक्टर जो भी इस फिल्म में आए वो अपने आप खुश होकर आए, मुझे कोई फोर्स नहीं करना पड़ा और मैं वो समझ सके मुझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से कहना चाहता हूँ, क्या कहानी कहना चाहता हूँ। और तो उनको डिटेल में रिसर्च करके मैंने काम किया उन सबके साथ, एंड इट वाज वेरी गुड बिकॉज दे अंडरस्टूड कि फिल्म क्या है, क्या वक्त, बिकॉज आई हैड डन रिसर्च ऑन व्हाट द मैटर पीरियड वाज, उस पीरियड में क्या होता था। तो उस वक्त से लेके उनका समझा, वो लहजा बोलने का, वो चलने का अंदाज, वो लुक, वो चश्मा, वो झुमके, और जो आदमी थे वो उनके वो जो लुक, गरूर, ड्रामेटिक मेन, वो ये सब मैं फिल्म में लेकर आया हूँ। तो इसलिए मैंने किया कि ये कहानी भी है टू डू विद पीपल फ्रॉम फिल्म्स,
हम साइलेंट डायरेक्टर जो कहते हैं टॉकीज आए तो क्या होता है उनकी कहानी में, ज़िंदगी में, तो ये कहानी भी फिल्म वालों की है जो सोचते हैं कि ज़िंदगी कभी मेरे लिए रुकी नहीं है, अभी फिल्म बंद नहीं हुई मेरे लिए, मैं भी एक स्टार हूँ। तो ये कहानी पे उस पर लेके एक ड्रामा बनता है, ड्रामा बन के बहुत थ्रिलिंग बनता है, फिर थ्रिलिंग बन के सस्पेंस बनता है, फिर सस्पेंस बन के आपको चेहरे मिलती है। थैंक यू। कई सारी चीज़ें हैं, इमोशन जैसे बोला कि इमोशंस है, जज्बा है, तो वो सबको कितने एफर्ट्स एज अ डायरेक्टर इट इज इजी, बट इट इज़ नॉट ईजी एज अ डायरेक्टर और फॉर द एक्टर ऑल्सो। एक की बात समझिए, मैं स्क्रिप्ट जानता हूँ, मुझे मालूम कि स्क्रिप्ट कहाँ शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, बीच में क्या टेक्स हैं, कौन सा सीक्वेंस कहाँ शुरू होगा, कौन सा सीन कहाँ ख़त्म होना है, तो मुझे सब ध्यान रखना है। उसको लेके मैं एक सीन शूट करता हूँ। जब एक्टर आते हैं बीच का सीन शूट करते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, बीच में क्या हो रहा है, अभी क्यों कर रहे हो, अभी क्या करना है। तो वो समझदार एक्टर्स, ऐसे मशहूर actors, not only because they're famous as their actors, but famous before their talent. तो वो उसको इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से, इतने जज्बात के साथ कर सके, वो इज दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई गॉट। एंड जो फिल्म बनी है बहुत खूबसूरत बनी है, एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स, सोनी रिंगर के कॉस्ट्यूम्स, कैमरामैन टॉमस जेवियर का कैमरा वर्क, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जयदीप का स्कोर, गाने, खूबसूरत गाने, और बैकग्राउंड स्कोर सारे ये संजय चौधरी का, जो सलील चौधरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने दिया है। तो और सईद कादिर साहब की लिखी हुई लिरिक्स और सब सिंगर्स के बड़े बड़े आवाज़ें, इन सब ने घुल मिलकर एक ऐसा प्यारा चित्र बनाया है जो फिल्म चेहरे को। मेरी तो उम्मीद है कि भगवान करे कि सबको ये फिल्म पसंद आए, और दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड रिस्पेक्ट वन कैन गेट, कि द ऑडियंस लव्स द फिल्म, दैट्स व्हाट मैटर्स। वी ट्राइड आवर बेस्ट। बस इतना कहना चाहूँगा कि काम किया है उसको आप इज्जत दे सकें तो ज़रूर दीजिए, पसंद कर सकें, मेरी दुआ है कि आपको अच्छी लगे, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।